you, and here is a series of lectures, and today I'm going to take mean value theorem. Usually in the booklet we have application of derivative as a chapter, but I feel there is a strong need to incorporate application of integration, because if you see the recent papers of JEE Advanced and even ISI and CMI institutes, there is huge number of questions appearing on mean value theorem. So this lecture is one of the beautiful attempt to bridge the gap between the texts available. Let's start with the first problem, and what can be the best other than to start with the advanced one. And here is the last year problem, JEE Advanced 2023, and it tells let S be the set of, so I'm not writing in full language, let S be the set of all twice differentiable function f defined from R to R. Okay, such that d2f by dx2 is greater than 0 for all x belonging to -1 to 1. That for a small function f belonging to the set x, let xf be the number of points. The beauty of advanced paper is the way they frame the problem. Okay, because you can clearly see this problem will be easy. Let me first complete, but let's see how it is framed. So for f belonging to x, and later I'll define x is a member of set x. Let xf be the number of points x belonging to -1 to 1, such that f of x equals x. Okay, usually we call it fixed point in real analysis. Then which of the following statement are true? Then you have to check the two statements. So the first statement is there exists a function f belonging to S such that xf is 0. Second statement is for every function, for all function f belonging to S, we have xf is less than equal to 2. And see, there exists a function f belonging to S such that xf is exactly 2. And option D is there do not exist a function, means there do not exist a function f in S such that xf equals 1. Now before you go further, let's understand the problem. So the only guardianship or restriction in the question which is given is S is the set of all those functions, all twice differentiable functions. Okay, so whose derivative up to derivative ordered to exist such that this double derivative is strictly positive. Actually they are given for -1 to 2. So for all such functions we have to comment on the options. Now the information given in the problem is very minimal, and that's the beauty of this question. Okay, what does it mean to have double derivative positive? It's basically df by dx, d by dx of this is positive. Now what is df by dx? Is nothing but slope. So it shows dm by dx is positive. Now what is dm by dx? It's final slope minus initial slope by change in x. Limit when there is a small change in x is tending to 0 is positive. So roughly, since delta x is already positive, so we conclude from here f is minus mi for all x belonging to -1 to 1. तो ये तो बहुत ही बेसिक डेफिनेशन से आपको क्या फील आया? तो डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब होगा जो कोई भी एक्स इस इंटरवल में फॉर एनी एक्स एट एनी पॉइंट -1 to 1, फाइल टेक दिस ओपन इंटरवल, यहाँ पे फाइनल स्लोप इज मोर देन इनिशियल स्लोप, मतलब फंक्शन जो है वो तो कनकेव अप होने वाला है, बिकॉज यू कैन सी लेट्स से स्लोप हेयर इज 0.7, देन फर्दर इट विल बी 0.9, मे बी 1, 15 और समथिंग. द स्लोप इज इंक्रीजिंग. अब स्लोप दूसरे टाइप से भी इंक्रीज कर सकता है, ऐसा नहीं है. व्हाट अबाउट दिस वन? So right now you can see if slope is let's say 1, slowly it's decreasing 0.9 because it's trying to saturate towards constant 0.8. So this cannot be the curve, right? So whatever curve we are having, it is concave upward. तो आप यहाँ से options को directly feel कर सकते हो, although I will go the rigorous mathematical way also so that it helps you in different problem. लेकिन particularly इस problem बनाने के लिए let's say we have this y equal to x. I want whether at how many points the function intersects y equal to x line. तब ये तो सपोज एक मेरा फंक्शन ऐसे हो गया विच इज़ डिफाइंड फ्रॉम ओनली -1 to लेट्स से 1. बेस्ट एग्जांपल यू कैन टेक इज y equal to e to the power x in this interval defined from -1 to 1. So how many intersection we are having? 0. So there exists a function
definitely having no point of intersection. So first statement is true. अब is it possible to have a function with exactly 2 point of intersection or exactly 1 point of intersection? अब वो चेक कर सकते हैं. अब यही ग्राफ को e to the power x ग्राफ को if I lower down, तो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा. ठीक है. How I am sure like it will not intersects if I pull it down by 1 unit e to the power x minus 1. You know the slope will be e to the power x. Okay. So at x equals 0, slope of e to the power x is also 1, and y equal to x is a tangent line. Okay, वहाँ पे you can see the equation of tangent also. So clearly one solution is also possible. So hence there does not exist f belongs to x except is a wrong statement. Next is, does there exist a function f belonging to that set such that xf is 2, number of element 2 है. अब वो भी obvious है क्योंकि यहाँ से if I lower it down further, so you have y equal to x line. अगर मैं और इसको एक यूनिट से लोअर कर दूँ, so we have graph something like this. Or you can find in fact infinitely many functions so that it will have 2 point of intersection. So इसका keep up still. Okay, so this statement is also true. Option C. Now coming to statement B, it is putting a limit on how many point of intersection will have. So it's telling maximum number of point of intersection that you are having is 2. मतलब इस केस से ज़्यादा नहीं हो सकता है. It means we can't have situation like this. Suppose y equal to x. तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शंस दैट दे हैव क्रिएटेड, मतलब हमारे पास कुछ इस टाइप का सिचुएशन नहीं हो सकता है. अब वो एक तो फील्ड से आपको पता ही चल रहा है बिकॉज इफ दिस टाइप ऑफ सिचुएशन इज देयर, दिस इज द रीजन वेयर वी हैव लाइक कैन कीप डाउन कि यहाँ पे स्लोप 0 है और फिर यहाँ पे स्लोप नेगेटिव हो रहा है और फिर यहाँ स्लोप पॉजिटिव हो रहा है, यहाँ पे भी स्लोप ठीक है नेगेटिव से 0 के पॉजिटिव ऐसे आ रहा है. तो चेंज इन स्लोप शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव. इट मीन्स फाइनल स्लोप शुड ऑलवेज बी मोर देन इनिशियल स्लोप. तो यहाँ पे देखो इफ स्लोप इज 0, अब यहाँ पे जैसे ही इफ आई एम कमिंग डाउन एंड इंटरसेक्टिंग मोर, तो फाइनल स्लोप इज निगेटिव माइनस इनिशियल स्लोप इज 0 इन स्मॉल इंटरवल बाय डेल्टा एक्स. ये तो निगेटिव हो गया, दैट्स अ कंट्राडिक्शन. इसका मतलब विथ फील्ड ये तो पता हो रहा है जो 2 से ज़्यादा ये नहीं होगा. मोर एवर इफ इट इज़ कनकेव अप तो फिर इट कांट डांस लाइक दिस. ठीक है, फॉर दिस कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन. तो इसीलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आएगा वो तो 2 से ज़्यादा क्रॉस नहीं कर सकता है. लेकिन देयर इज अ नाइस वे लाइक टू डिफेंड दैट लॉजिक. सपोज इफ क्रॉस इज मोर देन 2. ठीक है, सपोज f of x equal to x happens at more than 2 point. So let's say it happens at alpha, beta and gamma, so that alpha is not beta is not gamma, so they are distinct. तो हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं psi of x equals f of x minus x. जनरल मोटिवेशन, दिस आई एम डूइंग रिग्रेस प्रूफ फॉर पार्ट बी. ठीक है, तो यहाँ पे psi of alpha is f of alpha minus alpha which is 0 by our assumption. Psi of beta is also 0 and psi of gamma is also 0. तो यहाँ से क्या हमको मिला, एक psi एक ऐसा फंक्शन है ऑफ कोर्स अल्फा बीटा गामा लाइज इन द इंटरवल लेट्स से -1 to 1 पे. यहाँ पे 3 पॉइंट पे वी हैव फिक्स पॉइंट, 3 फिक्स पॉइंट फॉर दिस फंक्शन. नाउ इफ आई अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम टू अल्फा एंड बीटा, तो यहाँ पे ऑफ कोर्स सिंस psi alpha is 0 and psi beta is 0, so I'll get at least 1 point जहाँ पे psi dash alpha dies by Rolle's theorem. Similarly psi beta is 0 and psi gamma is 0, so at least 1 point तो मिलेगा ही जहाँ पे psi dash, let's not call it alpha, a new name, let's say psi dash c1 dies. Similarly psi dash c2 dies. Now if I apply mean value theorem between psi dash c1 and psi dash c2, तो यहाँ से मेरा क्या आएगा. So let's say psi dash x is a new function which is phi of x. So I know phi of c1 is 0 because psi dash c1 is 0. Phi of c2 is 0. तो फिर अगर phi पे मैं Rolle's theorem अप्लाई कर दूँ and of course c1 c2 is also definitely lying between -1 to n interval. तो फिर मेरा क्या आएगा, phi पे अगर अप्लाई कर दूँ तो मेरा आएगा phi dash some zeta where zeta belongs to c1 to c2. So at least there exists one zeta belonging to c1 c2 such that psi dash zeta is phi of c2 minus phi of c1, phi of c2 minus phi of c1 divided by c2 minus c1. Now what is phi dash zeta? ये तो हो जाएगा psi double dash zeta, and phi of c2 and phi of c1 is actually 0. तो
इफ़ वी हैव थ्री डिस्टिंक्ट पॉइंट, ओके, इफ़ वी हैव थ्री डिस्टिंक्ट फिक्स पॉइंट, तो यहाँ से क्या गया, साइड डबल डैश जीटा जीरो हो गया। अच्छा, ये तो खतरा हो गया, क्यों? क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझे बोल रहा है डबल डेरिवेटिव जो है फंक्शन का, ठीक है, d2f/dx2, वो तो पॉजिटिव होना चाहिए, वो तो पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन अगर मेरा साइड डबल डेरिवेटिव ऑफ जीटा जीरो हो गया, इसका मतलब यहाँ से इफ डिफरेंस इज साइड डैश एक्स इज एफ डैश एक्स माइनस वन, so psi double dash x is f double dash x, and we know like there exists a point zeta between -1 to 1 such that psi double dash zeta is f double dash zeta. अब psi double dash zeta है, इसका मतलब f double dash zeta जीरो हो गया, लेकिन ये कंट्राडिक्शन हो गया बिकॉज f double dash zeta is strictly positive, okay, because d2f/dx2 is strictly positive for all x belonging to -1 to 1. तो ये जो स्ट्रिक्ट साइन है इनइक्वालिटी का, ये बहुत खतरनाक था यहाँ पे, इसके कारण देयर इज अ बॉन्ड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट दैट वी आर हैविंग, ठीक है। वैसे आप स्मार्टली एग्जामिनेशन में एक एग्जाम्पल्स लेके भी इसको देख सकते हो, बिकॉज यू कैन टेक ह्यूज एडवांटेज ऑफ द मिनिमल इन्फॉर्मेशन गिवन इन द प्रॉब्लम। तो कैसा फंक्शन ले लो जिसका डबल डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव हो, जैसे ई का पावर एक्स ले लिया यहाँ पे, सिंपल हो गया, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर लोगे तो फिर जीरो हो जाएगा, एक्स क्यूब लोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव 3x² हो गया, सेकंड डेरिवेटिव 6x हो गया, तो वो भी डिपेंड करेगा एक्स पॉजिटिव होने के लिए। तो ऐसा एग्जांपल ले लीजिए जिसका डबल डेरिवेटिव ऑलवेज पॉजिटिव हो इस इंटरवल में, ठीक है। तो तुम ट्रिग्नोमेट्री वाले भी सोच सकते हो, तो फिर उससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा, लेकिन दिस इज रिग्रेसली हाउ वी सॉल्व द प्रॉब्लम। लेट्स ट्राई अनदर क्वेश्चन। अब बैक टू बैक अब सीरीज ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, जहाँ से विल सी लाइक हाउ टू अप्लाई द बेसिक आइडिया ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। चलो सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड द सेकेंड क्वेश्चन टेल्स सपोज इफ वी हैव अ फंक्शन फ्रॉम 0 to 1, नाउ दिस इज नॉट फ्रॉम जी, ठीक है, ये स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से, बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट मॉड ऑफ f dash x is never 1, okay, for every or for any x belonging to 0 to 1. इट मीन्स कभी भी डेरिवेटिव का जो वैल्यू है वो +-1 हो ही नहीं सकता है, कोई भी x उठा ले 0 to 1 का। तो देन वी हैव टू प्रूव दैट, और देन ऑफ कोर्स दे कैन गिव यू एन ऑप्शन। तो आपको यहाँ पे लेट मी आस्क यू टू प्रूव लाइक देयर एग्जिस्ट अ यूनिक अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, देयर एग्जिस्ट फर्स्ट पार्ट यूनिक अल्फा बिलोंगिंग टू 0 to 1 सच दैट f of alpha equal to alpha। तो उसी टाइप में क्वेश्चन हो गया जिस कंडीशन चेंज हो गया। In part B, you have to show that there exists unique beta such that f beta is 1 minus beta, where beta belongs to 0 to 1. तो अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है, चलो सोचते हैं। तो पहले तो एक फील लेते हैं क्वेश्चन का, f इज डिफाइंड फ्रॉम 0 to 1 क्लोज इंटरवल टू 0 to 1 इंटरवल। इसका मतलब इस बॉक्स के अंदर ही जो भी ग्राफ है वो होने वाला है, ठीक है, सच दैट f डैश x कभी भी 1 नहीं होगा, f डैश एक्स कभी भी 1 नहीं होगा। तो ऐसा कुछ सोच सकते हो, जैसे अगर मान लो मैं ये फंक्शन डिफाइन कर लूँ, ठीक है, जो कि 0 से 1 जा रहा है, एंड f डैश एक्स 1 नहीं है एंड इस डिफरेंशियल फंक्शन है। तो अगर मैं ये फंक्शन डिफाइन कर लूँ तो यहाँ पे तो क्लियरली f डैश एक्स जो है वो मेरा 1 आ गया। कैसे? क्योंकि अगर मैं ये y इक्वल टू एक्स लाइन लूँ विच इज़ सर्विंग एज डायगोनल फॉर दिस स्क्वायर, पहले फील करते हैं और फिर देखते हैं मैथमेटिकली कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो इस कर्व पे एक ऐसा पॉइंट तो हम मुझे मिल ही जाएगा रॉल्स थ्योरम से या फिर मीन वैल्यू थ्योरम से। इनफैक्ट रॉल्स थ्योरम इज ऑल्सो अ मीन वैल्यू थ्योरम ओनली में। LMBT से आप रॉल्स को प्रूव कर सकते हो बाय डिफाइनिंग ए न्यू फंक्शन f of x माइनस लेफ्ट ओवर, ठीक है। एनीवे तो यहाँ पे एक तो मुझे c मिल गया जहाँ पे f डैश c 1 है, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं चाहिए फंक्शन में। इसका मतलब ये ग्राफ जो होगा, ठीक है, वो यहाँ पे वैलिड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे वैलिड नहीं है। अब यहाँ पे क्यों वैलिड नहीं है ग्राफ? क्योंकि देखो ये स्टेटमेंट को भी यूनिकनेस को वायलेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन बोला देयर एग्जिस्ट, यू हैव टू प्रूव देयर एग्जिस्ट यूनिक अल्फा एंड यूनिक बीटा। अब कोई बच्चा बोलेगा ऐसा मिल तो रहा है अल्फा इज 0 लेकिन अल्फा इज 1 भी मिल रहा है, क्योंकि अगर ये पिक्चर सही है तो आई विल हैव टू आंसर्स लाइक अल्फा 0 और अल्फा 1, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन f डैश एक्स कभी भी कोई भी वैल्यू पे 1 होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। तो फिर अब हम दिमाग क्या लगाएंगे? अब आपको आइडिया मिल ही गया, बिकॉज आई विल टेक द गैप बिटवीन दीज टू फंक्शंस टू अप्रोच। सो लेट्स से आई डिफाइन अ फंक्शन साई एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स और एक्स माइनस एफ एक्स, कुछ भी आप डिफाइन कर।
तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ठीक है, इफ एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन देन क्लियरली एक्स इज डिफरेंशिएबल, सो साई एक्स इज डिफरेंशिएबल, ठीक है। अब सपोज हमारे पास यूनिक पॉइंट नहीं है अल्फा, सो लेट्स से इफ यू हैव गॉट 2 पॉइंट इन दिस इंटरवल 0 से 1 में, अब फिर से हम वही कर देते हैं। सपोज वी हैव गॉट 2 पॉइंट अल्फा एंड बीटा सच दैट एफ अल्फा अल्फा हो जा रहा है और एफ बीटा बीटा हो जा रहा है। अगर ये 2 पॉइंट सपोज एग्जिस्ट करता है तो, बिकॉज आई एम वायलेटिंग द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इन एवरी मीन वैल्यू प्रॉब्लम आपको वायलेट करना होगा, बिकॉज इट्स ईजियर टू सेट द क्वेश्चन विच exhibit the given condition rather than to set the question which does not obey the particular rule, क्योंकि क्वेश्चन सेटर भी उसको वायलेट करने वाला रूल बहुत मुश्किल है उसको प्रूफ करना, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑप्शंस होगा, देखो ऊपर में भी जो जेई एडवांस का क्वेश्चन था, ठीक है, क्योंकि ये तो आप आसानी से डी ऑप्शंस गेस कर रहा था, यहाँ पे देयर एग्जिस्टेंस वाला प्रूफ करना आसान है, इसको नहीं प्रूफ करना बहुत मुश्किल है, मतलब उल्टा इसको निगेशन प्रूफ करना मुश्किल है और डायरेक्ट प्रूफ करना आसान है, तो वो भी आप यू कैन टेक एज अ मोटिवेशन टू गो। अब देखो, अब अगर अल्फ़ा और बीटा पे एफ ऑफ अल्फ़ा अल्फ़ा और एफ ऑफ बीटा बीटा है, तो फिर अब अगर मैं मीन वैल्यू थ्योरम लगा दूँ किस पे, साई पे, तो साई ऑफ अल्फ़ा 0 स्वाहा, साई ऑफ बीटा स्वाहा, अल्फ़ा पे साई मरेगा, बीटा पे मरेगा, तो कम से कम एटलीस्ट 1 वैल्यू सी आई विल गेट सच दैट साई डैश सी विल डाई। अब व्हाट इज साई डैश सी, इट मीन्स इज एफ डैश सी -1 विल डाई, इट मीन्स एटलीस्ट 1 वैल्यू ऑफ सी तो मुझे मिल ही जाएगा 0 से 1 में, जहाँ पे एफ डैश सी जो होगा वो 1 हो जाएगा, और ये तो होना नहीं चाहिए, इट मीन्स दिस इज अ वायलेशन। ध्यान से देखो, मैंने क्या लेके चला, मैंने लेके चला जो ऐसा 2 वैल्यू मिलेगा, वी हैव फिक्स पॉइंट सच दैट अल्फा पे अल्फा बीटा पे बीटा, अगर वो लेके चला तो फिर थप्पड़ खा के वापस आ गया, इट मीन्स जो लेके चला वो गलत है, ठीक है, बहुत ही सिंपल फिलॉसफी। एफ डैश सी इक्वल्स 1 जो है वो नहीं होना चाहिए, इट मीन्स ये नहीं होना चाहिए, ये क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि साई डैश एक्स 0 नहीं होना चाहिए, साई डैश सी 0 कौन करवाया, ये एफ डैश अल्फा एफ डैश बीटा मिलकर करवाया, तो दोनों एक साथ नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ऐसा 2 वैल्यू हो ही नहीं सकता है 0 और 1 में जो फिक्स पॉइंट हो, मीन्स एफ अल्फा अल्फा दे दे, एफ बीटा बीटा दे दे, अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट हो, एक ही तरीके से पॉसिबल है जब अल्फा और बीटा सेम हो जाए, मीन्स देयर एग्जिस्ट यूनिक वैल्यू इन 0 2। अब सिमिलरली तुम सेकंड स्टेटमेंट को भी खुद से प्रूफ कर लो, यहाँ पे फंक्शन जो डिफाइन करोगे एफ ऑफ एक्स उसको उस साइड ले आओ प्लस एक्स -1, सो लेट्स कॉल इट दिस एज अ न्यू फंक्शन साई एक्स। अब इस पर फिर से आप रॉल्स थ्योरम अप्लाई कर दीजिए एंड यू आर डन, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन था। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में अगेन एफ इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, ओके, ऑन इंटरवल ए टू बी टू आर, मान लो ये एक फंक्शन है जो कि कंटिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है ऑन द ओपन इंटरवल ए टू। डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ रॉल्स थ्योरम इज ऑलवेज टॉक्ड ऑन द ओपन इंटरवल एंड कंटिन्यूटी ऑन क्लोज इंटरवल। इसका रीजन आई हैव ऑलरेडी गिवन इन वन ऑफ माई प्ले लिस्ट, वहाँ पे भी दैट इज प्ले लिस्ट फॉर मीन वैल्यू थ्योरम, इज अराउंड 1 hour लेक्चर एंड दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर बेसिक आइडिया ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। वहाँ पे मैं जेईई एडवांस का क्वेश्चन भी लाया हूँ, आप डिफरेंशियल कैलकुलस के प्ले लिस्ट में जाके आप वो लेक्चर देख सकते हो। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल में एंड डिफरेंशिएबल है ओपन इंटरवल में, सच दैट एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी 0। आपको प्रूव करना है that there exists some c belonging to A to B such that f dash c plus 2024 fc will be 0। अब ये भी फिर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये मैं लास्ट लेक्चर्स में भी लिया था। अब देखो पहले क्वेश्चन को फिर समझते हैं। वी हैव एफ ऑफ ए बी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव जस्ट फॉर द सेक ऑफ फीलिंग टेकिंग पॉजिटिव। तो मान लो ये कुछ ऐसा फंक्शन होगा, बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है। लेट्स से एट ए एंड बी फंक्शन जस्ट डज दिस मेनी टाइम्स एंड देन कम बैक। रिमेंबर देयर शुड बी नो शार्प कॉर्नर बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है तुमको एक ऐसा सी मिलना चाहिए जहाँ एफ डैश सी प्लस 2024 टाइम्स एफ ऑफ सी। एफ डैश सी मीन्स सपोज यहाँ पे कोई एक वैल्यू है, so एफ डैश सी मीन्स इसका स्लोप का वैल्यू, स्लोप विल बी अ नंबर एंड इफ आई टेक दिस हाइट एफ ऑफ सी एंड मल्टीप्लाई दिस 2024 टाइम्स, तो इस हाइट को अगर मैं 2024 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लूँ तो एक नंबर आएगा वो हाइट एंड प्लस वो स्लोप वाला जो नंबर आएगा उस दोनों को ऐड कर दूँ तो आंसर मेरा 0 हो जाना चाहिए। सो ऐसा क्या एग्जिस्ट करता है कोई सी?
अब देखो यहाँ से इस ग्राफ में इस पोर्शन पे लाइक द पोर्शन वेयर आई हैव ड्रॉन डायग्राम, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि एफ ऑफ सी पॉजिटिव है और यहाँ पे स्लोप भी पॉजिटिव है, तो दो पॉजिटिव को मिल के जीरो होना असंभव है। एक ही केस में ये हो सकता है जब फंक्शन जीरो हो जाए, ठीक है, तब तो ये ऑब्वियसली ट्रू है, आइडेंटिकली जीरो हो जाए। लेकिन इधर चांसेज है, सपोज नेगेटिव पावर मैं यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे ले लूँ एट दिस पॉइंट, सपोज इफ आई टेक, सो मे बी स्लोप इज नेगेटिव, सपोज स्लोप का वैल्यू कुछ आ गया, ठीक है, -7 पॉइंट समथिंग समथिंग, और यहाँ पर हाइट ऑफ फंक्शन इज पॉजिटिव और उसको मैं 2024 से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज अगर हाइट भी एक फ्रैक्शन होगा 2024 से मल्टीप्लाई करके अगर एग्जैक्टली हाइट अगर -7.5 से 2024 आ जाए तो इसको 2024 से मल्टीप्लाई किया, सो दैट इज़ ठीक है, हाइट अगर 7 पॉइंट समथिंग आ जाए तो 7 पॉइंट समथिंग -7 पॉइंट समथिंग जीरो हो गया। इट मीन्स यहाँ पे चांसेस दिख रहा है, लेकिन ये तो फिर हो गया फील्ड का बात। एक्चुअली इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो फिर यहाँ पे सिलेक्शन ऑफ फंक्शन इंपॉर्टेंट। अब देखो जैसे अगर तुम एक फंक्शन लोगे ई का एफ ऑफ एक्स, ठीक है, e टू द पावर 2024x, अगर मैं ये एक फंक्शन कंसिडर किया साई ऑफ एक्स, आई विल टेल यू वाई ऑल ऑफ सडन व्हाट इज द थॉट प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग दिस फंक्शन। ठीक है, ये अचानक से मुझे इतना दिमाग तो आ ही नहीं सकता है जो अचानक से हम इस फंक्शन को सेलेक्ट कर लें। तो देखो यहाँ पे एक हिंट है, बट बिफोर दैट लेट मी सॉल्व दिस, देन आई विल मोटिवेट यू वाई दिस फंक्शन। तो अब यहाँ पे क्लियरली साई ऑफ ए जीरो और साई ऑफ बी जीरो हो गया, क्योंकि एफ ऑफ ए जीरो है, एफ ऑफ बी जीरो। तो हेंस एक फंक्शन साई के लिए जो कि कंटिन्यूस है ए बी में, बिकॉज एफ एक्स इज कंटिन्यूस एंड ई का पावर दिस इज कंटिन्यूस बाय आवर स्मार्टनेस, लेट्स कॉल इट द स्मार्ट अराइवल ऑफ फंक्शन। तो अगर ए पे स्वाहा बी पे स्वाहा, तो एक ना एक ऐसा पॉइंट तो मिलेगा ही, एटलीस्ट वन, दैट्स द स्टेटमेंट, एग्जिस्टेंस एटलीस्ट वन सी, जहाँ पे ये मरेगा साइड एस। बट व्हाट इज साइड एस? एफ को डिफ्रेंशिएट करो, ई का पावर 2024x को छोड़ो, प्लस ई का पावर 2024 को डिफ्रेंशिएट करो और एफ को छोड़ो। तो अब देखो ये 2024f प्लस एफ डैश टाइम्स ई टू द पावर 2024x हो गया। अब मोटिवेशन आपको पता होगा कि देखो यही क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन वाज गिविंग हिंट जो हम विच फंक्शन टू सेलेक्ट सच दैट वो डाई हो जाए। नाउ एटलीस्ट देयर इज वन सी सच साइड एस सी जीरो, एफ सी प्लस एफ डैश सी, तो इसको मरना होगा। क्यों? क्योंकि दिस विल नेवर बी जीरो, ई का पावर समथिंग, सॉरी ई का पावर समथिंग विल हैव दिस ग्राफ, ओके, लैम्डा एक्स फॉर लैम्डा इज फर्स्ट, तो वो तो कभी मरेगा नहीं। सो दैट प्रूव्स द क्वेश्चन। ठीक है, तो अब नाउ द मोटिवेशन इज, बिकॉज इन अदर प्रॉब्लम्स आपको खुद मोटिवेशन इस लॉजिक से लाना है। तो मोटिवेशन है, देखो यहाँ पे रफ आइडिया है, जब एफ डैश इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करो, सो एफ डैश इज -2024f, so f dash by f, and that will give you a hint, -2024 लगभग ln f इक्वल टू -2024x प्लस कॉन्स्टेंट को मैं छोड़ता हूँ क्योंकि फीलिंग चाहिए, तो वो उस साइड लाएगा, तो e का पावर 2024x इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट टाइप का फील आएगा। तो यहाँ से ऑलवेज व्हेन यू रफली, आई एम नॉट टेलिंग द एग्जैक्ट सॉल्यूशन विल गिव यू द आंसर, समटाइम्स प्लस माइनस आपको खुद दिमाग लगाना होगा, बट रफली आपको फंक्शन का नेचर पता चल जाएगा। क्योंकि देखो किस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करके मुझे ये लेना है। अब ऐसा वाई आई एम थिंकिंग, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉल्स थ्योरम में है इफ दिस एंड दिस इक्वल्स दिस देन देयर एग्जिस्ट सच दैट समथिंग डेरिवेटिव इज जीरो। इट मीन्स यू थिंक ऑफ ए फंक्शन हुज डेरिवेटिव इज दिस, दैट इज द वेरी स्टेटमेंट एंड एसेंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम। तो उसके लिए ऑफ कोर्स विल नॉट गेस, क्या करोगे, डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लो। जैसे ही सॉल्व करोगे वहाँ से हिंट आ जाएगा और वो हिंट के यूज़ करके आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, बिकॉज द मेजर चैलेंज फॉर स्टूडेंट्स इज हाउ टू थिंक फॉर द फंक्शन। ओके, तो हम यहाँ पे आपको ये ब्रह्मास्त्र डाल दिए, अब आप फंक्शन के बारे में आसानी से सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल प्रीवियस क्वेश्चन में भी एफ ऑफ अल्फा अल्फा, सो क्वेश्चन इज गिवन यू हिंट, हेंस आई एम मोटिवेटेड बाय एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स। ये क्वेश्चन तो फर्स्ट एडवांस वाला काफ़ी ही था, तो वहाँ पे मोटिवेशन का ज़रूरत ही नहीं था। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारा पॉसिबिलिटीज है। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल टू रियल एंड एफ इज डिफरेंशिएबल, ठीक है, एंड दे हैव गिवन एफ ऑफ 4 इज लेस देन एफ डैश एक्स इज लेस देन एफ ऑफ 5 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर। So just with these informations, is it sufficient to conclude like f is an injective function? Is it sufficient to conclude that f is a injective function, मतलब strictly इंक्रीजिंग होगा f? क्या मैं ये conclude कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता हूँ? देखो फिर इसमें मीन वैल्यू थ्योरम कैसे लगाए,
तो अपन एक क्वेश्चन को फिर से फिल करते हैं. सो वी हैव अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर. तो यहाँ पे सम पॉइंट है 4 and 5. 4 पे कुछ आउटपुट होगा, 5 पे कुछ आउटपुट होगा. अब बोल रहा है स्लोप ऑफ जो फंक्शन है एफ डैश एक्स का जो वैल्यू आएगा स्लोप, वो फंक्शन ऐसे डिफाइन किया गया है क्रेजीली और मैजिकल वे में, सच दैट एफ ऑफ 4 पे सपोज 1 आया, एफ ऑफ 5 पे 2 आया. एग्जाम्पल. तो इसका स्लोप अब कभी भी क्या होना चाहिए, 1 और 2 के बीच में ही होना चाहिए फॉर ऑल एक्स, मतलब बाहर भी, एक्स के बाहर भी, रियल टू रियल. ठीक है. तो अब देखो यहाँ से तो एक फील आ रहा है. सपोज अगर मैं इसको ज्वाइन करूँगा तो स्लोप कितना आया, 1 आ गया. तो यहाँ पे डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट जहाँ पे स्लोप जो है वो 1 है. तो वो तो खुद गलत हो गया, बिकॉज आई वांट द कंडीशन एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 5 के बीच में स्लोप आना चाहिए. सो इफ एफ ऑफ 4 इज 1 एंड एफ ऑफ 5 इज 2, वी मस्ट हैव अ नंबर बिटवीन दिस. 1 इज लेस देन 1 लेस देन 2 इज रॉन्ग. इसका मतलब ये डायग्राम सही नहीं है. समझ में आ रहा है? अब देखो यहाँ से भी तुमको फील आ गया ये डायग्राम सही क्यों नहीं है, क्योंकि इस डायग्राम को मैं इधर ऊपर किया और फिर नीचे कर दिया. ठीक है. तो दिस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग, तो फिर ये वायलेट कर दिया. तो यहाँ से फील आ गया ओ अच्छा, मतलब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वाला नेचर शायद सही नहीं हो. लेकिन ऐसे तो आप गेस करते ही रह जाओगे. एंड सिमिलरली यू कैन प्रूव इन दिस इंटरवल डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग से भी एटलीस्ट देयर इज वन पॉइंट वेयर यू नो लाइक स्लोप इज 1. तो देन समवन विल थिंक अच्छा इसका मतलब 1 से मैं डायरेक्ट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर दूँ या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कर दूँ, ऐसा सोचोगे. ठीक है. तो विद दैट ऑल्सो यू कैन गिव फिलॉसफी. ठीक है. बट द पॉइंट इज लाइक हाउ टू टेक इन्फॉर्मेशन अबाउट इवन द पॉइंट्स बियॉन्ड 4 and 5. ठीक है. तो इतना दिमाग लगाने के बजाय हम क्या करेंगे, अब हिंट फिर मिल रहा है 4 और 5. तो 4 पे जो भी आउटपुट है लेट्स कॉल एफ ऑफ 4, और 5 पे जो भी आउटपुट है लेट्स कॉल एफ ऑफ 5. तो एक तो ऐसा सी मिलेगा ही उस ग्राफ में such that there exists at least one c such that f dash c is going to be f of 5 minus f of 4 by 5 minus 4, which is f of 5 minus f of 4. अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखो f dash c जो है, क्योंकि इट इज़ फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू रियल नंबर एंड c इज ऑल्सो अ रियल नंबर, तो हम बोल सकते हैं ये जो क्वांटिटी होगा f dash c f5 माइनस f4, इसको रहना पड़ेगा फॉर f of 4 और f of 5 के बीच में. अगर ये हुआ तो वी हैव टू इनइक्वालिटी. एक तो यहाँ से आया 2f of 4 मस्ट बी लेस देन f5, और यहाँ से आया माइनस f4 मस्ट बी लेस देन 0, इम्प्लाई f4 मस्ट बी पॉजिटिव. तो अब मजा आ गया. देखो क्या हो गया, f4 को पॉजिटिव होना ही होगा. अगर f4 पॉजिटिव हो गया तो f डैश एक्स पॉजिटिव हो गया, f डैश एक्स तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो गया. और अगर f डैश एक्स पॉजिटिव हो गया तो ये तो गारंटी हो गया अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है ऑफकोर्स कंटिन्यूस होना ही होगा. तो इस डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स. अभी तुम बोलोगे नहीं ये फॉर ऑल एक्स तो मैं प्रूफ नहीं किया. ठीक है. अभी हमने क्या किया, इन दिस इंटरवल इसको मैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाया है. ठीक है. तो तुम बोलोगे ये जो x आप लिए, ये जो c का जो वैल्यू है वो तो 4 और 5 के बीच में आ रहा है. ठीक है. वो तो 4 और 5 के बीच में आ रहा है ना. नहीं तो देखो हम c का वैल्यू 4 और 5 से ये कंक्लूड किए जो f ऑफ 4 पॉजिटिव है. ठीक है. अब ये तो इट्स ट्रू फॉर ऑल x इवन इफ c इज नॉट इन बिटवीन 4 and 5. सो दिस x may not be between 4 and 5. दिस इज वैलिड इवन फॉर x बिटवीन 2024 और 2025. ये जो एक्सप्रेशन है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यहाँ से बस c का हेल्प 4 to 5 से इतना ही था क्योंकि f ऑफ 4 पॉजिटिव हो जाए. तो ये हो गया फंक्शन जो है वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना ही पड़ेगा. तो ये सिंपल प्रॉब्लम था. लेकिन इफ़ इट कम्स इन द एग्जामिनेशन, जैसे देखो फर्स्ट वाला वो JEE एडवांस का सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इसको अच्छा से सेट वेट में लिख ले लाइक S is a set of all functions f such that f dash x always lie within two boundary. Okay, so for all such functions there exists two value of x such that f of a equal to f of b even when a is not equal to b. So ऐसे they can make drama क्योंकि ये मेनी वन का डेफिनेशन है. ठीक है. तो आई होप ये आपको समझ में आया. तो ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन था यहाँ पे जिसको आप बहुत ही सही ढंग से बना सकते हो. ठीक है. एक चीज़ और, जब तुम जैसे रॉल्स थ्योरम को व्हेन वी आर ट्राइंग टू डू, ठीक है ना, द कंटिन्यूटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जांपल सपोज इफ आई टेक, यूजुअली आई हैव सीन मेनी किड्स हैविंग कंफ्यूजन इन दिस थ्योरम स्टेटमेंट ओनली. So suppose this is the function, right? This is the function.
अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो एफ इज डिफाइंड ओवर 0 to 1, f0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सो एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस ओवर क्लोज इंटरवल 0 to 1, लेकिन एफ इज़ डिफरेंशिएबल ओवर ओपन इंटरवल 0 to 1, क्योंकि ओपन इंटरवल 0 to 1 में फंक्शन ऐसा बिहेव कर रहा है, और जिसका एफ डैश एक्स जो है ओपन इंटरवल में वो तो -3 होगा। तो सिर्फ फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है, क्लोज इंटरवल में, बट इट्स कंटिन्यूस इन द ओपन इंटरवल। आप देख सकते हो इट्स कंटिन्यूस इन ओपन इंटरवल 0 to 1, बट इट्स नॉट कंटिन्यूस इन क्लोज इंटरवल 0 to 1। क्यों? x 0 पे ये आ रहा है कि यहाँ से लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पे 1 आ रहा है, सो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस और f इज नॉट सेम एज f ऑफ 0, तो कंटिन्यूस नहीं। सो इवन इफ derivative exists, still Rolle's theorem will be violated. It means you can't apply the statement of Rolle's theorem. मतलब कहने का ये मुद्दा है कि सपोज एक फंक्शन ऐसा है जो 0 पे अचानक से 1 हो गया, ठीक है, और 1 पे फिर 0 है, एंड द फंक्शन इज लाइक दिस। और लेट्स से 0 पे 0, 1 पे ऑल्सो 0, it's open. So see, f of 0 is still f of 1. Function is differentiable in open interval 0 to 1. लेकिन इसका मतलब ये नहीं जो देयर एग्जिस्ट द पॉइंट सच दैट f डैश 0, क्योंकि हर एक पॉइंट पे f डैश तो पॉजिटिव है, इनफैक्ट 1 है। सपोज दिस इज स्लोप इज y इक्वल टू x काइंड ऑफ, ठीक है। सो इसीलिए द एक्सट्रीम कंडीशन मीन्स द बाउंड्री कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, ठीक है। सो दैट यू शुड नेवर टेक इट लाइटली। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो अब एक ये क्वाड्रेटिक वाला क्वेश्चन लेते हैं, नया टाइप का। सपोज एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड 14a प्लस 9b प्लस 6c 0. So with this condition, of course ABC is real. Is it true that f of x equal to 0 has at least one root in 0 to 2? F of x has at least one root in 0 to 2. So see, like I'm not compelled by using Rolle's theorem here. ऐसा कोई compulsion नहीं है मेरे पास, क्योंकि I could use intermediate value theorem also, ठीक है। सपोज इफ यू टेक a नॉट इक्वल टू 0, यू राइट c इन टर्म्स ऑफ b, और अगर आप प्रूफ कर दोगे f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 2 ऑलवेज लेस देन 0 होगा, तो फिर यहाँ से ये बता रहा है सिंस f इज अ कंटिन्यूस फंक्शन, तो 0 पे वट एवर आउटपुट एंड 2 पे इफ देयर आर ऑपोजिट साइन, चाहे ऐसा हो ऐसा, एटलीस्ट वन रूट इज गारंटी। एक तो दैट इज मेथड 1 विच आई रिकमेंड यू टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। दूसरा है मीन वैल्यू थ्योरम। तो मीन वैल्यू थ्योरम के लिए अब देखो अगेन वी वांट रूट ऑफ f ऑफ x एज एटलीस्ट वन रूट। सो प्रॉब्लम ऑफ रोल्स थ्योरम और मीन वैल्यू थ्योरम क्या हो रहा है, एटलीस्ट वन रूट किसका होगा, डेरिवेटिव का। इसका मतलब आई विल थिंक ऑफ अगेन अ फंक्शन हुज डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, तब तो उस फंक्शन पे लगाएंगे तो उसका डेरिवेटिव कम से कम एक बार मरना चाहिए, ठीक है। सो दैट्स द कंसिक्वेंसेज ऑफ रोल्स थ्योरम। तो एफ ऑफ एक्स पे विल नॉट अप्लाई रोल्स थ्योरम, उस फंक्शन पे जो एफ ऑफ एक्स को जन्म दिया है, क्योंकि उस पे लगाने से एफ ऑफ एक्स का जन्म होगा और एफ ऑफ एक्स मरेगा उस इंटरवल में। अब तो फंक्शन सोचना आसान है, क्योंकि इट विल गिव एक्स क्यूब बाई 3, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेट दिस प्लस सी एक्स प्लस डी फंक्शन, लेट्स कॉल दिस इज साइन एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करके ये दे देंगे, ठीक। तो यहाँ से अगर मैं इसको देखूँ, सो वी हैव 2ax क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6cx प्लस 6d डिवाइडेड बाई 6। अब देखना पड़ेगा ये कंडीशन क्या दिया हुआ है, ठीक है, ये कंडीशंस क्या दिया हुआ है। 14a प्लस 9b कैसा आएगा। सो नाउ यू हैव टू प्ले। ऐसा तुम सोचो जैसे अगर मैं साई 1 रखूँ, साई 0 रखूँ, साई 2 रखूँ, साई 3 रखूँ, साई -1 रखूँ, ठीक है। थोड़ा आपको प्ले करना होगा सच दैट उसको ऐड वाइड करके 14 9 6 का कॉम्बिनेशन देखें। तो इफ आई टेक साई 0, ये तो 60 आ गया। एनीवे डी तो पिक्चर में है ही नहीं, तो तुम डी को हटा भी सकते हो, ठीक है, लेट्स कीप इट। अब साई 1 रखेंगे तो 2a प्लस 3b प्लस 6c प्लस 6d आ जाएगा। साई 2 इज 16a प्लस 12b प्लस 12c प्लस 6d, ऐसा, ठीक। तो अब तुम यहाँ से देखो, यहाँ से आप ऑब्जर्व ही कर सकते हो। जैसे साई 3 भी रख देंगे 27 to 54 है, तो ये तो काफ़ी बड़ा हो गया।
अब देखो 1496 ये कहाँ से आ रहा है, 1496 का जन्म जो है, ठीक है, ये कहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, वो साई 1 और साई 2 से ही दिख रहा है तुमको, कभी कभी साई -1 और साई -2 से भी दिखेगा। तो यहाँ पे 16 - 2 14, 12 - 3 9, 12 - 6 एंड 6d - 6d 0। तो क्लियरली दिख रहा है ये जो कंडीशन दिया गया है, दिस कंडीशन इज नथिंग बट साई 2 माइनस साई 1 इज 0। तो इसको चुपके से डाल दिया वो कंडीशन, ठीक है। तो अब हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से, नाउ व्हाट वी कैन टेल, अब मैं बोल सकता हूँ साई एक ऐसा फंक्शन है जो साई 1 और साई 2 इक्वल है। आई एम नॉट टेलिंग साई 2 एंड साई 1 इज 0, जस्ट कंक्लूजन इज साई 2 इज इक्वल टू साई 1 एंड दैट्स इनफ, क्योंकि इफ साई 1 एंड साई 2 इज इक्वल देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी such that side SC must die between 1 and 2, ठीक है ना, between 1 and 2। तो 1 और 2 के बीच में एक ऐसा डेफिनेटली पॉइंट होगा जहाँ पे साइड एस खत्म होगा। जैसे ही साइड एस खत्म होगा तो साइड एस सी मीन्स एफ ऑफ सी, इट मीन्स देर इज डेफिनेटली एटलीस्ट वन रूट बिटवीन 1 and 2। तो एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 के बीच में लेस देन 0 ये गारंटी नहीं है, लेकिन क्या गारंटी है, क्या गारंटी है, क्योंकि 1 और 2 के बीच में गारंटी है। तो अगर आप एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 2 से करोगे तो शायद आपका आंसर नहीं भी आए, ठीक है, क्योंकि हो सकता है 0 एफ ऑफ 0 पे जो आउटपुट है और एफ ऑफ 2 पे आउटपुट है वो सेम साइन का है, तो तुम करते रहोगे आएगा ही नहीं, बोलेगा सर आप तो गलत बता दिए। गलत नहीं बताएं, क्योंकि देखो 0 और 1 के बीच में एक रूट हो सकता है, 1 और 2 के बीच में एक रूट होगा, ये तो गारंटी हो गया एटलीस्ट एक रूट 1 और 2 के बीच में होगा ही। हाँ, दोनों का दोनों भी हो सकता है, अगर दोनों का दोनों हो जाता तो फिर स्टिल एफ ऑफ 1 एंड एफ ऑफ 2 का जो वैल्यूज़ है साइन वो पॉजिटिव होगा। सो इट्स फाइन, लाइक इट इज़ इन अकॉर्डेंस विथ, ये पॉजिटिव होना इस बात का संकेत नहीं है जो रूट्स नहीं होगा 0 और 2 के बीच में, ठीक है, तो हो भी सकता है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। सो दिस इज हाउ वी अप्लाई रोल्स थ्योरम टू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं और इसमें रोल्स थ्योरम को अप्लाई करते हैं, जिसमें मज़ा आने वाला है। तो अगर मेरे पास ये अच्छा क्वेश्चन है फिर, f इज अ फंक्शन 0 to 1 to r, ये अगेन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, सच दैट f ऑफ 0 इज 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to 1, सॉरी हाँ एक्चुअली f of 0 equal to 0, okay, and f dash x, again very strong concept, magnitude is less than f of x, ठीक है। so for all x belonging to 0 to, so you have to comment on f of x, ठीक है, f of x पे कमेंट करना होगा। तो f of x is greater than 0 है for some c between 0 to 1, और f of x is less than 0 है for some c between 0 to 1, और f of x is identically 0 for all c between 0 to 1। ये आपको देखना है। तो फिर से मैं ऐसा करता हूँ, मुझे f of x 0 है या नहीं इसके बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी लेनी है, और f of 0 0 है। तो फिर से अगर मैं फील लूँ, so f of 0 is 0 एंड द फंक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम 0 to 1, तो फंक्शन तो अब ये ऐसा जा सकता है, ऐसा जा सकता है, ऐसा जा सकता है, ऐसा आइडेंटिकली 0 हो सकता है, या फिर ऐसा नहीं जा सकता। लेकिन नाउ यू डोंट हैव दिस फ्रीडम फॉर द फंक्शन, क्यों, क्योंकि मुझे एट एनी पॉइंट f डैश x जो है वो लेस देन इक्वल टू f ऑफ x चाहिए, मतलब f ऑफ x बड़ा होना चाहिए f डैश x। अब तो ये लीनियर वाला तो फंक्शन ऐसे ही गलत हो गया, क्यों, क्योंकि f डैश x ऑलवेज इसका 1 हो गया। सपोज ये y इक्वल टू x पार्ट ले लूँ, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो तो ये हाफ 0.3 0.4 0.5 ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू है नहीं, तो इसका मतलब इस टाइप का तो फंक्शन आने वाला नहीं। चलो फिर एक फिर करते हैं, क्या ये पॉसिबल है, लेट मी सी दिस, ठीक है। तो यहाँ पे लेट से स्लोप कुछ 2 आया, फिर यहाँ पे स्लोप 0 आ गया, ठीक है ना। तो 2 से 0 जाने के वक्त में ऑफकोर्स स्लोप डिक्रीज कर रहा होगा क्योंकि कंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक।
फिर अगेन 0 से फिर से 0 आया, मतलब इंक्रीज कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, 0 से -2, फिर -2 से 0, फिर इंक्रीज कर रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंटिन्यूसली, जो ये डायग्राम से भी फील आ रहा है, एफ ऑफ एक्स का जो वैल्यू है ये अगर कंटिन्यूसली बढ़ भी रहा है फिर घट रहा है, इन स्लोप जो है उस हिसाब से मे भी चेंज नहीं हो रहा हो, तो मे बी दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल, मे बी वी आर नॉट श्योर। तो इस टाइप के प्रॉब्लम फिर से भाई आई लेट्स स्टार्ट विद द कंट्राडिक्शन। हम एज्यूम करते हैं जो देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट बिटवीन 0 to 1 जहाँ पे f of alpha is non-zero, means this height exists. So I'm assuming let there exist be some alpha between 0 to 1, ठीक है, such that f of alpha is non-zero। आप एक्सक्लूड भी कर सकते हो, कोई डिफरेंस वेटी लगा, और लेट्स इंक्लूड दिस बिकॉज इट्स अप्लाइड फॉर ऑप्टिक्स। तो अब अगर है तो नाउ इफ आई अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम बिटवीन 0 to alpha, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, f of alpha minus f of 0 divided by alpha minus 0 must be some f dash c where c belongs to 0 to alpha, ठीक है। now since f of 0 is 0, so f dash c is f of alpha or alpha, clear। ठीक है, ना व्हाट वी वांट मॉड ऑफ एफ डैश सी जो आएगा फॉर सम सी, सो सिंस वी नो मॉड ऑफ एफ डैश सी should be less than equal to fc, it means f of alpha mod alpha should be less than f of c, राइट। तो यहाँ से मॉड ऑफ एफ अल्फा जो आ गया इज लेस देन मॉड अल्फा टाइम्स एफ ऑफ सी, सो फार सो गुड, ठीक है। अल्फा पे जो भी वैल्यू आएगा आउटपुट और कोई सी विच इज बिटवीन 0 to 1 फॉर सम सी जिसका स्लोप इक्वल है, सो वन इनइक्वालिटी वी आर हैविंग, राइट। अब एक इनइक्वालिटी हम और ला सकते हैं, क्या ला सकते हैं, सपोज अल्फा टू 1 में इफ आई अप्लाई मीन वैल्यू थ्योरम, राइट, सो एफ ऑफ वन माइनस एफ ऑफ अल्फा by 1 minus alpha is f dash some d for d belonging to alpha to 1, ठीक है। प्रूव बाय कंट्राडिक्शन, आप यहाँ से एक बार ट्राई करना खुद, एंड इफ यू आर गेटिंग पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। हियर आई एम टेकिंग अगेन अनदर अप्रोच, सपोज यहाँ पे टू क्रिएट एफ डैश एक्स एंड एफ ऑफ एक्स, ओके, एफ डैश एक्स एंड एफ ऑफ एक्स, आई कैन एज्यूम सम फंक्शन, सो एफ डैश, लेट्स फर्स्ट फॉरगेट अबाउट मॉड, अगर मैं मॉड को हटाऊँ सो एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, ये कहाँ से आएगा, इसको जन्म देने वाला कौन फंक्शन होगा, सो एफ डैश इक्वल टू एफ डैश बाई एफ इक्वल्स 1, सो लॉन एफ इज 1, सो एफ इज ई का पावर एक्स टाइप का। सी दिस इज जस्ट अ रफ फीलिंग, अगेन अगेन आई एम टेलिंग, सो आई नो ई का पावर समथिंग एक्स और 2x कैन हेल्प मी आउट, ठीक है, कैन हेल्प मी आउट। तो अगर मैं एक फंक्शन डिफाइन करूँ एफ ऑफ एक्स ई का पावर एक्स एज साई, सो व्हाट इज साई डैश, एफ डैश ई का पावर एक्स प्लस ई का पावर एक्स, सो विल गेट ई का पावर एक्स एफ प्लस एफ डैश, ओह दैट्स कूल, बट वी वांट एफ डैश माइनस एफ, तो ये तो सही नहीं फंक्शन है, तो यहाँ पे माइनस लाने के लिए ऑफ कोर्स डिफरेंशिएशन से माइनस आना चाहिए, सो नाउ आई विल अपडेट माय फंक्शन, इंस्टेड इफ आई डिफाइन ई टू द पावर माइनस एक्स, सो मे बी दैट गिव्स मी मोटिवेशन, ये काम कर सकता है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है, एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ई का पावर माइनस एक्स, सो एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स ई का पावर माइनस एक्स। अब देखो सिंस वी हैव मॉड एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ से ये तो हम बता सकते हैं जो एफ डैश एक्स जो होगा वो
कहाँ से कहाँ के बीच में होगा. So if mod of something is less than let's say 2, so this must be lying between f of x and minus f of x के बीच में, right? So f dash x lies between minus f of x to f of x के बीच में रह रहा है. तो यहाँ से what we can conclude? यहाँ से we can conclude f dash x minus f of x will lie between 0 and minus 2 f of x. ठीक है. अब f of x के बारे में we don't have any information other than f0 is 0. Again we can define a new function, let's call psi of x, which is f square better f e to the power minus x, जो मोटिवेशन में बता रहा था इसका होल स्क्वायर. Now why I am taking whole square, it will be clear. तो side x will be 2f f dash minus 2f square into e का power minus 2x. Now we know since mod of f dash is less than equal to mod of f, तो यहाँ से f dash will lie between f and minus f. So what about f dash? Lie between f square and minus f square, which implies, यहाँ से फिर क्या implies कर रहा है, एफ एफ डैश जो होगा माइनस एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर के बीच में लाई करेगा. तो 2f f डैश जो होने वाला है that will lie between 2f square and minus 2f square. So 2f f dash minus 2f square will lie between 0 and minus 4f square. तो ये तो निगेटिव ही होने वाला है फंक्शन लेस देन इक्वल टू 0. तो साइड एस दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव पॉजिटिव. सो साइज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, क्योंकि साइड एस. तो फॉर x larger than 0 what we are having, okay, for x larger than 0 the way we have defined psi of x is positive, क्योंकि देखो f टाइम c का पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर कर लिया और ये डिक्रीजिंग हो रहा है. इसका मतलब मेरे पास क्या आ गया, जो psi of 0 is 0, psi of 0 is 0, लेकिन साइड एस एक्स इज लेस देन 0 मीन्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग फ्रॉम हियर 0 to 1 के बीच में. ठीक है, इसका मतलब psi ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0, बट वी नो psi ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इक्वलिटी टू 0 कैन हैपन इफ एंड ओनली एफ ऑफ एक्स 0. तब psi ऑफ एक्स बोल रहा है लेस देन इक्वल टू 0, बट अकॉर्डिंग टू माई डेफिनेशन ऑफ फंक्शंस द वे आई हैव डिजाइन्ड इज psi x greater than equal to 0. So the only possibility is psi x must die identically. Now if psi x dies from 0 to 1, f of e का पावर माइनस एक्स होल स्क्वायर मस्ट बी 0 आइडेंटिकली इन 0 to 1. अब इसके लिए f of x को मरना ही होगा. सो देयर इज नो अदर ऑप्शन. तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन था जहाँ पे f of x को मरना ही होगा. तो यहाँ पे देखो फर्स्ट थॉट प्रोसेस में LMBT से 0 से अल्फा के बीच में लगाऊंगा, वहाँ से आइडिया नहीं वर्क किया तो फिर मैं e टू द पावर माइनस एक्स के बारे में सोचूंगा. अब यहाँ से भी कंक्लूसिवली आई कांट टेल. देखो यहाँ से द प्रॉब्लम इज कंक्लूसिवली आई कांट टेल, माइनस 2f उसके बीच में ही होगा. सो देन उसको मैं स्क्वायर किया. इफ़ आई विल टेक क्यूब तो फिर कंक्लूसिवली आई कांट टेल, पावर 4 से हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो इसीलिए आई थॉट ऑफ स्क्वायर. आई होप दिस मोटिवेशन इज क्लियर. तो ये काफ़ी अच्छा मोटिवेशन था जिससे आप इसको सॉल्व कर सकते हो. क्वेश्चन ऑल्सो लेट्स से एफ ऑफ एक्स इक्वल्स 2 रूट एक्स plus sine 3x squared. See how dangerous it looks. X minus 1 whole cube plus 5x squared plus e का power 2x plus 7 divided by x minus 2 का whole 5. So you have to tell like thus there exists some x naught such that f of x naught is 0. इसका रियल रूट पॉसिबल है कि तब यहाँ से क्लियरली हम देख सकते हैं अगर हम लिमिट x टेंस टू 1 प्लस लें, ओके, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, ये तो पॉजिटिव होने वाला है और ये भी स्मॉल पॉजिटिव होगा 0.00 समथिंग, दैट विल गो टू इन्फिनिटी. 1 प्लस पे ये फाइनाइट होगा. सिमिलरली लिमिट x टेंस टू हम 2 माइनस ले लें तो ये तो माइनस 0.01, तो ये क्वान्टिटी माइनस इन्फिनिटी पे चले जाएगा और ये पॉजिटिव होगा सो माइनस इन्फिनिटी. सो आई नो 1 प्लस पे तो इन्फिनिटी होने वाला है, 2 माइनस पे माइनस इन्फिनिटी. तो जैसा भी ग्राफ हो क्योंकि इन बिटवीन इट्स कंटिन्यूस, तो एक ना एक बार तो एफ ऑफ अल्फा को 0 होना ही होगा. इट
इट मीन्स एटलीस्ट 1 रूट तो गारंटीड है, ठीक है. आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड दिस सेशन एंड आई विल कम विथ मोर बूस्टर सेशन करस्पॉन्डिंग टू दिस. एक और मीन वैल्यू सेशन करेंगे और फिर वेक्टर्स और 3D का बूस्टर सेशन करेंगे. थैंक यू, हैव अ गुड डे. प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. एज यू कैन सी लॉट ऑफ एफर्ट इट गोज, okay, to give you this.